کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا۔ السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 18 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ صحیح ہے، آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو آپ سائڈ میں رکھیے اور ٹیسٹ کاپی نکالیں۔ کل میں نے آپ کو جو ہے سبق نبی کریم کی مکی زندگی آپ کو دوبارہ سے اس کو ریویژن کروایا تھا، اس کے 2 سوال دیے تھے، پہلا اور دوسرا، اس کا میں ٹیسٹ دے رہی ہوں۔ صحیح ہے، تو آپ نے جو ہے اپنی ٹیسٹ کاپی نکالیے اور ابھی ہم جو ہے بورڈ پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے، اور بورڈ پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا ٹیسٹ دیا گیا ہے۔ صحیح ہے، یہ ہے آپ کا بورڈ اور یہ لیکچر نمبر 18 ہے اور آج کی ڈیٹ ہے 11 جون 2021۔ صحیح ہے، اسلامیات ٹیسٹ کی ہیڈنگ ڈالیں، ڈیٹ لکھیے 11/6/2021 اور سوال نمبر 1 ہے حلف الفضول کیا معاہدہ ہے اور معاہدے کی وجہ کیا تھی۔ صحیح ہے، اور دوسرا ہے سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں شامل ہو کر کیا کیا کام کیے۔ صحیح ہے، یہ 2 سوالوں کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا کل کا جب ٹیسٹ ہو جائے گا، فرائیڈے والے روز کا جو کام ہوگا اس کے ساتھ وہ آپ نے پھر اسکول میں کاپی سبمٹ کروانی ہے تاکہ آپ کے پورے ویک کے ٹیسٹ جو ہیں وہ چیک ہو جائیں۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جو بچے ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ سمجھاتی ہوں، یہ آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 18 ہے۔ اسلامیات ٹیسٹ کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، آج کی ڈیٹ لکھیں گے، آج ڈیٹ ہے 11/6/2021 اور سوال نمبر 1 ہے حلف الفضول کیا ہے اور معاہدے کی وجہ کیا تھی۔ صحیح ہے، حلف الفضول یہ معاہدہ کیوں کیا گیا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی، یہ آپ نے بتانی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول میں شامل ہو کر کیا کام کیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے تھے اور آپ نے اس میں شامل ہو کر لوگوں کے لیے، مکے کے لوگوں کے لیے کیا کام کیے، وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ صحیح ہے، یہ 2 سوال آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ صحیح ہے، اس کا اسکرین شاٹ آپ کو مل جائے گا اور اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور کتاب میں دیکھتے ہیں آگے۔ میں نے آپ کو آدھا سبق جو ہے ریویژن کروایا تھا، آدھا سبق باقی ہے، وہ ہم ریوائز کرتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، نبی کریم کی مکی زندگی کا سبق یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اس کا سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے لین دین میں اچھے طریقہ جو ہے اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کو آمین اور صادق کے نام سے پکارنے لگے تھے، یعنی کہ ابھی آپ نے جو ہے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور لوگ آپ کو آپ کی عادات کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کو آمین اور صادق کہنے لگے تھے۔ حضرت اس کے بعد جو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شادی کی، وہ عرب کی ملکۃ العرب جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت خدیجہ، ان سے کیا۔ وہ بہت ہی مالدار خاتون تھیں اور ان کے تجارتی قافلے جو ہیں وہ دنیا کے عرب سے، مکے سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تو آپ بہت مالدار خاتون تھیں۔ آپ کو جو ہے امانت اور صداقت کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، ہمارے نبی کی امانت اور صداقت جو تھی وہ پورے مکے میں مشہور ہو گئی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور کو دیکھتے ہوئے مکے کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے کام کریں، ان کے تجارتی کاموں کو سنبھالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی یہ بات جو ہے وہ مانی اور حضرت خدیجہ کے
काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते हज़रत खदीजा की तिजारत खूब फैलने शुरू हो गई और साथ काम करने वाला जो उनका ग़ुलाम था मैसरा, उसने आपकी बेइंतहा तारीफ़ की और हज़रत मोहम्मद को हमारे नबी को जो है आप पसंद करने लगे। हज़रत खदीजा भी आपके काम को पसंद फरमाती और आप सल्लम पर बहुत भरोसा करने लगी। कुछ अरसे में हज़ूर सल्लम ने हज़रत खदीजा से निकाह फरमाया। वो ना सिर्फ अच्छी बीवी थी बल्कि बहुत अच्छी दोस्त और साथी भी थी। वो हज़ूर सल्लम का बेहद ख्याल रखती और इस्लाम पर ईमान लाने वाली औरतों में सबसे पहली खातून थी। जब हज़ूर सल्लम पर पहली वही उतरी और हज़ूर सल्लम इस मौजज़े से कदरे परेशान हुए तो उस वक़्त हज़रत खदीजा ने ही आपको संभाला, आपको जो है आपको समझाया और कहते हैं आपको संभाला। ऐलान नबूवत के बाद तमाम मुश्किल मरहलों में हज़रत खदीजा आप सल्लम के साथ रही। मामलों की समझ, हज़रत मोहम्मद सल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको ज़्यादा वक्त अपने साथ रखते थे, जिसकी वजह से आप सल्लम को बचपन ही से मामलात को समझने की तरबियत मिली थी। यानी आपके दादा जो थे वो मक्के के सबसे बड़े कबीले कुरैश के सरदार थे और आप जो थे वो लोगों के मामलात को हल करते थे। और तो आप सल्लम हर वक्त अपने दादा के साथ रहते थे, जिसकी वजह से आपको बचपन ही से मामलात को समझने की तरबियत मिली। आपने देखा कि मामलात को किस तरह हल किया जाता है, जैसे दादा करते थे आप उन्हीं के तरीक़े से आपने भी इसकी तरबियत आप हासिल की। हज़ूर सल्लम में वो समझ और शऊर था कि मसले को फ़ौरन समझकर इसका हल निकाल लेते थे। मिजाज में लोगों की यानी कि जो आपकी आदत थी कि लोगों की मोहब्बत, मासूमों और मज़लूमों के लिए हमदर्दी जैसी आदत ने आपको मक्के के लोगों का एक मकबूल रहनुमा बना दिया। लोग आपके पास अपने मसाइल लेके आते और आप उनके मामले को समझकर उसका हल बताते और जिस पे अमल करके वो लोग जो है अपनी परेशानियों से निकलते थे। आप सल्लम का एक बहुत मशहूर वाक़या है हजर अस्वद की तनसीब का और हज़ूर सल्लम का इंसाफ का। एक दफ़ा जो है मक्के में इतनी बारिशें हुई कि खाने काबा की दीवारें जो हैं वो बहुत ही खस्ता हाल हो गई। तो वहाँ मक्के के कबाइल ने ये जो है वो फ़ैसला किया कि खाने काबा की तामीर और मरम्मत का काम किया जाए। मक्के के सारे कबीलों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, लेकिन जब दीवार में हजर अस्वद नस्ब करने का वक्त आया तो हर कबीला यही चाहता था कि वही ये सादत हासिल करे। इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया और मक्के के लोगों के लिए मशहूर था कि वो छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकाल देते थे और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। एक के बाद एक कत्ल होता रहता था और उसके बाद फिर उस कत्ल का बदला लिया जाता था और फिर ये लड़ाइयाँ जो हैं वो नस्ल दर नस्ल जो है चलती रहती थी और नौबत यहाँ तक पहुँचती थी कि तलवारें निकल आएँ। कई दिन इस झगड़े में गुजर गए तो कुरैश के एक बूढ़े शख्स ने ये मशवरा दिया कि इस तनाज़े का फ़ैसला इस शख्स के हवाले करो जो सबसे पहले हरम में दाखिल हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अगले दिन जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हुआ वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग खुश हो गए और सब ने कहा बेशक आप आमीन हैं और आप जो फ़ैसला करेंगे हम इस पर राज़ी होंगे। जब ये मामला आप सल्लम तक लाया गया तो आप सल्लम ने ज़मीन पर एक चादर बिछाकर हजर अस्वद इसके बीच में रख दिया और हर कबीले के सरदार को बुलाकर कहा कि वो चादर का कोना पकड़कर उठाएं और हजर अस्वद को खाने काबा की दीवार तक ले जाएं जहाँ पे उसे नस्ब करना था। फिर वहाँ आप सल्लम ने हजर अस्वद चादर पर से उठाकर खाने काबा की दीवार में नस्ब कर दिया यानी लगा दिया। इस तरह खाने काबा की तामीर फिर शुरू हो गई जो रुक गई थी। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। सही है, आप सल्लम ने कितने बड़े झगड़े को निपटाया अपनी मामला फहमी से, अपनी समझदारी से। और जो कबाइल जो हैं तलवारें निकाल लेते थे उनको एक बात पर मुत्तफ़क़ कर लिया और सब खुश भी हो गए, सबका हाथ भी लग गया था सारे कबाइल के सरदारों का। और हजर अस्वद जो है वो अपनी खाने काबा की मशरक़ी दीवार पर आप सल्लम ने अपने हाथों से उसको
लगा दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा होने से बच गया। सही है। फिर हजर अस्वद के बारे में जो है आपको बताया था, खाने काबा की मशरक़ी दीवार पर ज़मीन से 4 फीट ऊपर एक सियाह पत्थर, जब ये जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उनको दिया गया था, तो ये काले रंग का पत्थर था। दीवार से इसके गिर्द चांदी का हल्का बनाया गया। ये जन्नत का पत्थर है। सियाह होने के सबब इसे हजर अस्वद कहा जाता है। हजर कहते हैं काले को, और हजर कहते हैं पत्थर को, और अस्वद कहते हैं काले को। तो इसको हजर अस्वद जो है इसके मानी हुए काला पत्थर हजर अस्वद कहा जाता है। ये पत्थर हमेशा से इस बात की निशानी है कि खाने काबा का तवाफ़ इसके पास से शुरू किया जाता है। जब हज के मौके पर तवाफ़ काबा होता है तो हजर अस्वद के पास से तवाफ़ शुरू होता है। उम्रा और हज के दौरान लोग इसको बोसा देते हैं, यानी कि इसको चूमते हैं। बोसा का मतलब है चूमना। इसको हाथ लगाकर चूमते हैं और या अपने लबों से इसको चूमते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये मौका मिलता है कि इंसान इसे चूम सके, क्योंकि रश बहुत होता है। लाखों के करीब जो है हाजी हजर अस्वद को चूमना चाहते हैं और उनको गुज़रते हुए इसको हाथ लगा के अपने हाथ पर चूमना होता है। सही है। ये नबी करीम की मक्की ज़िंदगी, यहाँ पर ये जो है आपको हजर अस्वद के बारे में बताया। उसके बाद है सच्चाई की तलाश। मक्के में हर तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम था, और लोग आपको आमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे। आप अक्सर तन्हा बैठकर लोगों के मसाइल के मुतालिक सोचते। अहले मक्का की बुत परस्ती, पस्त अखलाकी और लड़ाई झगड़े इन्हें पसंद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दूर सहराओं और गारों में जाकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। रात की तन्हाई, अंधेरा और खामोशी हजूर के सोचने के वक्त का बेहतरीन साथी थे, और अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत फरमाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, और पूरी रात जो है आप तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते रहते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन का खाना और पानी लेकर गारे हिरा में चले जाते थे। जो लोग हज कर चुके हैं उन्होंने गारे हिरा को देखा हुआ है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत कर रहे थे कि एक अजीब वाक़या पेश आया। हज़रत जिब्राईल गारे हिरा में तशरीफ़ लाए, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं। वो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, और अल्लाह का पैगाम जिसे वही कहते हैं वो लेकर आए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हुए कहा, पढ़िए। इस मौके पर कुरान की ये पहली आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तर्जुमा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली आयत जो है सूरह अलक़ की आयत है। ये इसमें जो है पहली आयत जो है गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, और आपको पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। सही है। इक़रा का मतलब है पढ़िए, और बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। सही है। ये सूरत जो है ये आयत नाज़िल हुई सूरह अलक़ की, और इस जो है ये वाक़या जो है गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया था। सही है। आज की क्लास और फिर मैंने आपको जो है 2 सवाल ये दिए कि वही किसे कहते हैं, और हजर अस्वद के ऊपर नोट जो मैंने लिखवाया हुआ है। ये 2 सवाल जो हैं आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। वही किसे कहते हैं, ये वही जो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अहकामात लेके आते थे, जो कुरान की आयतों की सूरत में होते थे, वो आते थे, उसे वही कहते हैं। सही है। और दूसरा हजर अस्वद पर नोट। और अब आपका ये लेक्चर नंबर 18 जो है वो आपका ख़त्म हो रहा है, और जो है आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। खुदा हाफिज़ व नासिर क्लास।